Assalamu alaikum dear students, this is the second lecture of kinematics. As we have already studied that kinematics is the branch which is dealing with the geometric aspect of the motion. और motion में हम सबसे पहले speed, velocity और acceleration देखते हैं. To derive velocity and acceleration we need the definition of position vector. The position of a particle can be specified by a vector. This is vector r, and whose initial point is the origin of some fixed coordinate system. We have taken the Cartesian coordinate system at this moment. So हमारे पास जो इसका initial point है वो इसका origin होगा और जो इसका terminal point particle होगा. So हम इस particle P की position को specify कर सकते हैं इस vector R के through. This vector is called the position vector, and if the particle is moving, the vector R changes with time. Let's say कि particle हमारे पास move कर रहा है, अगर हमारे पास पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया और वैसे दैट दिस इज पॉइंट Q, P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लेट्स से डेल R है. The position of particle at the point Q can be specified by another vector which is R plus del R. और ये हमारे पास जो टाइम P से Q तक होगा वो हमारे पास del of t होगा. Now the curve traced by moving particle is the trajectory or path of the particle. तो अगर ये particle हमारे पास point P पे था और ये particle हमारे पास point move करता हुआ point Q पे चला गया. So this curve traced by the moving particle is called the trajectory or path of particle. Now this path of particle can be specified by the vector equation which is r is equal to r of t. अब इसको आप एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर आपके पास ये r3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं xi plus yj plus zk, whereas this can be written as x of t I plus y of t j plus z of t k. So you can write that x is equal to x of t, y is equal to y of t by equating these two equations. Z is equal to z of t. So this path of particle can also be specified by these three scalar equations, and we call these the parametric equations of the path. These are the parametric equations of the path. अब हम velocity को ड्राइव करते हैं इसी इक्वेशन के थ्रू. जब आपका पार्टिकल पॉइंट P पे था और उसके बाद ये पार्टिकल पॉइंट Q पे मूव किया और इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास डेल R था. तो जो नया हमारे पास पोजीशन वेक्टर जिस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो r प्लस डेल आर हो गया, क्योंकि इसने डेल आर का डिस्टेंस कवर किया. और ये हमारे पास टाइम डेल टी था, ये सारा जो हमारे पास पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाते हो गया. Now this PQ is the del r which is the displacement of the particle from the point P in the small time interval del t. तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनती है del r ओवर del t, ये हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज देती है. अब अगर हम इस टाइम डेल टी को शॉर्ट करना शुरू कर दें, लेट्स सी हमारे पास ये पार्टिकल पॉइंट इस जगह पे था विच इज़ एनी अदर पॉइंट, तो हमारे पास ये वेक्टर यहाँ पर होता हमारे पास और डेल टी की वैल्यू हमारे पास इससे लेस होती, क्योंकि हमारे पास ये कम टाइम में इससे यहाँ से ट्रेवल कर रहा है. और लेट्स से कि अगर हमारे पास ये पॉइंट पी यहाँ पर होता और उसके लिए हम एक वेक्टर ऐसा स्पेसिफाई करते हैं तो हमारे पास ये डेल टी की वैल्यू मज़ीद कम होती. अब हम इस टाइम को इंटरवल को मज़ीद कम से कम करते जाएं और हम कह दें कि अगर दिस डेल टी इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, सो व्हेन द लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड दिस डेल आर और डेल टी, तो दिस पॉइंट P इसका मतलब है जो पार्टिकल हमारा पॉइंट P पे था ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए पॉइंट Q के बिल्कुल पास पहुंच रहा है, जो कि हम डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो कर रहे हैं. सो दिस इज़ द वेलोसिटी विच इज़ डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल आर ओवर डेल टी. So we can write this as dr by dt. So this is instantaneous rate of change. So we can also define the acceleration. हमने देखा कि velocity हमारे पास instantaneous rate of change of displacement है, और इसी तरह जब हम acceleration देखेंगे तो this is the rate of change of velocity होगा. So acceleration is also a vector quantity, and one limit del t approaches to zero and change in v divided by change in time. So we can write this as dv by dt, और इसको हम लिख सकते हैं d by dt whereas v dr by dt. So we can write this as d square r over dt square.
So this acceleration can be written as d square r over dt square. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम r लें एक्स आई प्लस वाई जे इन 2 डायमेंशन, तो हमारे पास डी आर बाई डी टी होगा डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे. सो दिस इज़ वेलोसिटी, और यही अगर एक्सेलरेशन की फॉर्म में हो तो दिस बिकम डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर आई प्लस डी स्क्वेयर वाई ओवर dt square j. So you can write acceleration and velocity in that prospect as well. Acceleration की हम एग्जांपल देख लेते हैं कि different ways to change velocity if a car speeds up. अब ये देखें, अगर हमारे पास अगर ये पहले कार थी और ये हमारे पास कम वेलोसिटी में चल रही है, जैसे इसकी स्पीड तेज़ होगी तो इसकी वेलोसिटी, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा. तो अगर आप ये देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर गई है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की चेंज करने की एग्जांपल है. और वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू जब टाइम हो तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन. सिमिलरली अगर हमारे पास कार तेज़ स्पीड में पहले चल रही है और उसके बाद वो कार ने ब्रेक लगाई और उसकी वेलोसिटी कम हो गई. वेलोसिटी कम होने से मतलब ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वो जब हमारे पास कम होगा तो इसका मतलब हमारे पास होगा कि वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है. सो दिस इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन. अगर हमारे पास एक कार है जो कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर 3 सेकंड में जा रही है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन को अगर हम ए से डिनोट करें, दैट मीन डी वी बाई डी टी. वी इज़ द वेलोसिटी, दैट मीन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. तो वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो रही है 0 to 100, सो इसका मतलब है कि 100 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है. और चेंज इन टाइम हमारे पास क्या होगा, 0 to 3 सेकेंड्स. तो दैट मीन 3 सेकेंड्स, 3 minus 0 is 3. सो दिस बिकम अप्रॉक्सीमेटली 33 किलोमीटर पर आवर सेकेंड्स. अब हमारे पास ये आवर्स और सेकेंड्स में, हम इसको सिर्फ सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं. 33 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करें तो दिस इज़ 1000. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. और आवर्स में हमारे पास 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. सो दिस बिकम 3600 सेकेंड्स. और ये हमारे पास पहले से सेकेंड मौजूद हैं, इसको इस तरह लिख देते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 33 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3s स्क्वायर. सो दिस बिकम 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है when the car goes from 0 to 100 किलोमीटर पर आवर in only 3 seconds. तो उसका एक्सेलरेशन हमारे पास इस तरह से निकल आएगा. थैंक यू वेरी मच. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. अब हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की एग्जांपल देख लेते हैं. In this example, it is defined that a particle is moving in such a way that its position at any time t is specified by this vector. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो हम उसे किसी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इस एग्जांपल में हमने इसको इसी तरह इस पार्टिकल की पोजीशन को इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है. अब हम इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. हमने देखा कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें डी आर बाई डी टी, यानी कि इसको टाइम के लिहाज से आप इसका डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लें. सो दिस बिकम 3t स्क्वायर प्लस 2t आई, whereas minus sin t plus 2 sin t cos t j plus e की पावर t और log of t का डेरिवेटिव 1/t है. So this is the velocity of this particle. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3t स्क्वायर प्लस 2ti
प्लस 2 sin t cos t को आप sin 2t लिख सकते हैं. दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी माइनस sin of t. This j is outside here. Plus e की पावर t plus 1 over t k. अब आप जब इसका एक्सेलरेशन लेंगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल. नाउ एक्सेलरेशन इज अगेन डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर. इसका आप दोबारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, विच इज 60 प्लस टी, सॉरी 60 प्लस 2 आई प्लस 2 cos 2t माइनस sin t का डेरिवेटिव cos t jth कंपोनेंट प्लस e की पावर t माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर. 1 ओवर t का डेरिवेटिव आपके पास माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर आएगा. दिस इज द kth कंपोनेंट. तो हमारे पास ये वेलोसिटी और इसी तरह हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा क्वेश्चन 1 के पर्सपेक्टिव में. एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं. लेट्स से इफ अ पार्टिकल p start from O at time t is equal to 0. We have to find the velocity and acceleration of particle at any time t if its position at the time is given by the vector at square I plus 4at j. Now velocity can be found by taking the derivative with respect to time. So this become 2ati plus 4aj. Can be found by taking again the derivative with respect to time, and this is equal to 2ai plus 0. So this become 2ai. Velocity and acceleration can be found easily by these terms.